अस्सलाम वालेकुम। ये बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है, खैर। क्या नाम है? उमैर नाम है। उमैर नाम है? हाँ जी। लाहौर के हैं? नहीं, पेशावर। पेट्रोल की कीमत पहले 137 रुपए बढ़ाई जाती है, फिर 80 रुपए कम कर दी जाती है। कोई सुकून आया दिल को? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुकून नहीं है, अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। ये लोग समझदार है, अवाम बेवकूफ़ है। बस अवाम निकलते ही नहीं है, अवाम में दम है नहीं। देसी मुर्गी बना हुआ है, बस यही काम है। देसी मुर्गियाँ ये कैसे सही होंगी? ऐसे सही होगा, डंडा निकालोगे तो सही हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे तो सही नहीं होगा। सड़कों पे निकलना पड़ेगा। 1000, हाँ सड़कों पे निकलना होगा। 1000 रुपये लीटर होगा, फिर क्या करेगा अवाम? वही बात होगी। बस कोई रोड पे आएगा तो पकड़ के लेके जाएगा, एक हफ्ते बाद फिर छोड़ेगा, 10-15 हज़ार रुपए ले लेगा, बाहर आएगा। बस वही मसला है। बस पाकिस्तान में कोई काम सही नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जी सर। मैं शहबाज शरीफ साहब वेखो, खुदा दा वास्ता जे गरीबों को क्यों मारी जा रहे जे? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੇ? ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? देखा आपने लापरवाही करना। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਦੱਸੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਲੋਂ? ਦੱਸੋ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ये जरा कैमरा घुमा के दिखाइएगा। ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ, ਔਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 137 रुपए ਵਧਾ ਕੇ 80 रुपए ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 500 ਦੀ ਗੈਸ ਹੁਣ ਭਰਾਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਭਰਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा कह रहे ने बड़ा काम करवा रहे ने पंजाब च। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਪਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਗਪਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ 200 ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 500 ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ऐसा मत करो मेरी जान। समझते हो किन्नू हुकूमत आना चाहिए या इन्हों ने ठीक हो जाना चाहिए? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ 80 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛਿੱਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कहते ने 100 रुपए की सब्सिडी देंगे। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਟੋ। जियो चाचा। ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਡ? ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਮ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रात को जो कौम से खिताब किया, उनमें उन्होंने जो है वो भरपूर तरीके से बोला है कि जी 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और अब आवाम मुताल
यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं? हम कुछ भी नहीं कहते, करते कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दिखाएं दिखाएं, फोन दिखाएं, आगे आए। इमरान खान की तस्वीर लगाई है। हाँ जी, इमरान खान के सपोर्टर है हम। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है। अवाम के लिए उसने सोचा था। इमरान खान ने उसने कहा था मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बर्दाश्त कर रहे हैं आप? ये कौम गाड़ी है, सोई हुई कौम ये बर्दाश्त कर रही है। जब तक ये जागेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो ऐसे ही काम होता रहेगा। ये कौम जिंदा होगी तो सारे हालात बदलेंगे। 137 रुपए बढ़ाकर फिर 80 रुपए कम करना, आपकी जिंदगी में कोई सुकून आया या फिर आप कहते हैं कि ज़हनी तौर पर मजीद मैं खराब हो रहा हूँ? वो कहते हैं ना किसी गरीब का 500 गिर गया उसको 50 मिल गए, इसी की खुशी में है। तो पटवारी इसी खुशी में पागल हो गए हैं कि 80 रुपए उसने सस्ता कर दिया है। तो इसी वजह से कहते हैं कि अपने जो जज्बात जगाएं, अपने आप पंजाबी कौम जागेगी तो ये हालात बदलेंगे। जिंदगी कितनी मुतासर हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से? ये तो बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत हालात ख़राब है। समझ लो काम शाम हर चीज़ महंगाई हो जाती है पेट्रोल की वजह से। तो इसी वजह से हर कुछ महंगा हो जाता है। जो तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, दिहाड़ी बढ़ नहीं रही, वो वहाँ पे ही है। मगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, तो वो वैसे ही चल रहा है। आपको ज्यादा याद आती होगी इमरान खान की, क्योंकि जी उनके दौर क्या बात है, वो इमरान खान हमारे दिल में है। हम तो पीछे ना हटने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। इंशाल्लाह हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बकाया कौम का जागना जरूरी है। कैसे जागेगी कौम? ये जब डंडे पड़ते हैं इनके साथ यही हालात होते हैं। कौम तो आपकी चुप कर गई है जब से डंडे बनने लगे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा वो वक्त, इंशाल्लाह बांग्लादेश से आगे निकलेंगे, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। इंतजार कर रहे हैं वो वक्त। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या करते हैं? सर क्या कहते हैं कि महंगाई इतनी है कि क्या कहना है आपके बच्चों को कि क्या करें। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, मेरा रिक्शा है मेरे पास। कितना फर्क पड़ा है जिंदगी पे? जिंदगी में तो बहुत फर्क पड़ता है। साफ ज़ाहिर है कि महंगाई इतनी हो गई है, सौदा लेने जाएं दुकान पे तो वहाँ पर मकसद है कि आटा घी महंगा है। पेट्रोल डलवाने जाएं तो पेट्रोल के जब सारी दिहाड़ी हम कमाते हैं, जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो जेब खाली हो जाती है। तो 137 रुपए पहले बढ़ाए गए, 24 घंटे के बाद 80 रुपए का जो है उन्होंने कमी कर दी। क्या कहेंगे? 80 रुपये का कमी की है तो क्या किया है, एक महीने के अंदर उन्होंने कितना बढ़ाया? 105 रुपए एक महीने में बढ़े हैं, 1 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक। आपसे 15 दिन पहले 58 रुपये तेल बढ़ाया इन्होंने, 137 रुपये बढ़ा के 57 रुपये तेल कम करके जी 80 रुपये का हमने रिलीफ दे दिया। तो क्या रिलीफ दिया? 57 रुपये बढ़ा दिया ना, रिलीफ तो नहीं दिया ना उन्होंने। हमारे लिए क्या है, जो मारना है गरीब को तो वैसे कुछ चीज दे के तो मार दें, यही कह सकते हैं। अब हम क्या करें? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? करें ऐसे ही चलता रहा तो क्या गरीब तबका बाकी रहेगा? गरीब तबका खत्म हो गया है और मजीद जो रहता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो कस्में खाई थी ना कि हम गरीब एक नहीं रहने देंगे, और ये कस्में वो पूरी कर रहे हैं कि हम मार देंगे भूखा। ये भूखा मारने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, पहले 137 पे बढ़े, फिर 80 रुपए कम हो गए, इससे आप खुश हैं? नहीं, हम खुश तो नहीं है, लेकिन मसला ये है ना कि देखें गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती है, अपनी महंगाई करती है, ठीक है, जंग लगी है उसका मामला था, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट ने देखना है, अवाम ने नहीं देखना। हुकूमत किस लिए होती है? ये बड़ी अच्छी बात कही। अरे 160 रुपए लीवी टैक्स था, और जितनी मर्जी कीमत बढ़ जाए आलमी मंडी में, लीवी टैक्स में कमी या पेशी मतलब उस पर फर्क नहीं पड़ता। 160 रुपए आप सिर्फ लीवी टैक्स दे रहे थे। अगर ये 500 रुपया भी हो जाए ना, जो हमारी माएँ बहनें हैं, गरीब तबका है, वो किराया नहीं देती। जब वो किराया नहीं देगी तो हम उसको कैसे लेके जाएंगे? बात एक। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इसको कह देते हैं ये 10 दिन का चालान आप लोगों को माफ़ है। 10 दिन के बाद अगर वो 10 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद इतने चालान होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ऐसे ही है ना, क्यों एक चालान तो माफ़ कर दिया, उसके बाद 10 चालान कर देते हैं, वो किधर जाते हैं? उसी के खाने में जाते हैं ना। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? ना हक चलान करते हैं, बनता नहीं है, फिर भी करते हैं। हाँ, अगर मॉडल टाउन चले जाए मोड़ पे, वहाँ पे देखो वार्डन वाले खड़े हुए हैं। अगर बाइक से कोई रिक्शे वाला आता है,
तो उसका चलान कर देते हैं। अगर जो उधर रिक्शे वाला खड़ा है उसका चलान नहीं होता, क्यों नहीं होता? कि वो वार्डन वालों को मंथली आप देते हैं। रिक्शा चलाते हैं, पहला आपका मसला ये है कि पेट्रोल महंगा है, दूसरा आपका मसला ये है कि वार्डन नाहक चालान कर देते हैं। इसके अलावा कि ये है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा है, ये मामला जो है ना इंसान के बहुत बड़े। कहाँ जाएंगे? हमारी तो दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती, क्योंकि 1000 रुपये हमने रिक्शे को किराया देना है और हमने घर का खर्चा करना है, पेट्रोल डलवाना, हमने कहाँ जाना है? सर कह रहे हैं कि 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, मिलेगी? मिल रही है? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं मिल रही। वो तो 2000 रुपए की सब्सिडी भी दी है ना इन्होंने, 2000 दी है, बिल 10,000 आपको पड़ गया। जो 1000-1500 बिल आता था, 2000 आपको मिला है, तो उस महीने के 10,500 12,000 बिल पड़ा है। तो ये क्या सब्सिडी दी? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के। क्या हाल देखते हैं इन सारी सूरत हाल का? सूरत हाल तो यही है कि आवाम जागेगी तो फिर ही कुछ बनेगा। मुझे तो यही लगता है। कैसे जागे? आवाम भूख से जब मरेगी तो फिर जागेगी, ऐसे तो नहीं जागने। क्योंकि अब तक जागनी होती ना तो तब तक ये कब से जाग चुके। वोट किसको दिया था? हाँ जी, वोट किसको दिया था? वोट तो हमने इमरान खान को दिया था। इमरान खान को? बिल्कुल इमरान खान को दिया था। हाँ जी, क्योंकि इन लोगों ने जलील बहुत कर दिया है। तो साफ ज़ाहिर है ये अभी भी ये बैठे हुए हैं 17 रुपये के, ये खुद अपने वोट से आए हैं? नहीं आए, क्योंकि ये शुरू से इनका काम चल रहा है, शुरू से इनका यही काम चल रहा है, दूसरे के हक पे डाका डालना। और ये हो रहा है। हम गरीबों के हक पे इस टाइम डाका डाला हुआ, यही डाका ही है ना कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर आए दिन बिल बत्ती के इतने महंगे हो गए हैं, गैस का बिल इतना, गैस हमारे घर में आती नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी कीमती। इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ये इन्होंने खुद कहा है, अभी आप सर्च करके देख ले, इनकी अभी पड़ी होगी, इन्होंने खुद कहा था अवाम देखो लोगों, जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो यूं समझो कि हुक्मरान चोर है, इन्होंने खुद कहा था। अभी सर्च करके देख लो, इनकी वीडियो, इनके बयान पड़े होंगे। इन्होंने कहा था कि जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो यूं समझो कि हुकूमत चोर होती है। अभी बताओ कौन चोर है? अभी बताएं कौन चोर है? मेरे सवाल का जवाब दे शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन चोर है? गाँव दसो, समझ रहे हो? ਤੁਸੀਂ बताया ते इंज बताया जे कि गरीब दी वोट पाड़ के रख दी है, तुसी इंज रेट बताया जे। इमरान खान ने थोड़ा जिहा बताया सी ते तुसी गरीब दी पाड़ के ओदे गल च पा दी है। अल्लाह पूछे। वालेकुम सलाम। अच्छा बहुत अदालत है ਤੁਹਾਨੂੰ आवाम इस वक्त अदालत ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। चाचा पाकिस्तान जिंदाबाद।